سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی یا قیام کی فرضیت کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کے اس مقام کے اوپر جو آیت نمبر 183 سے 187 5 آیات میں رمضان، صیام یعنی روزے، اس کے مسائل، اس کے فضائل، روزوں کا مقصد، دعا، اللہ کا شکر، اعتکاف، ایسے کئی عناوین کو اس میں جمع کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے تاکہ ہم رمضان کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ عنوان آپ نے سنا، استقبال رمضان۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ، صیام جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جب وہ اقرار کرتا ہے ان چیزوں کا تو اس پر لازم ہے کہ ارکان اسلام کی وہ پابندی کرے، ان میں سے روزوں کی بھی، صیام کی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو، ایک اعرابی آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لانے کے بعد مجھ پر کیا چیزیں فرض کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کلمہ شہادت کی ادا کر دینے کے بعد رات اور دن کے اوقات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ اس بدو نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اگر تم زائد کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے فرض کے علاوہ۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ شہادت کے بعد 4 چیزوں کے تعلق سے بتایا، ان میں صیام کے تعلق سے بھی بتایا کہ رمضان کے روزے ہیں جو اللہ نے تم پر فرض کیے، اس کے علاوہ تم نفل روزے رکھو بھی تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو عزت کے ساتھ عزت دی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے میں اس کو ادا کروں گا، نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ اس میں کچھ زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا ان صدقہ او دخل الجنہ ان صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسا کہ اس نے کہا، اگر اس نے اسے سچ کیا، اس پر عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ارکان اسلام کی پابندی کرے۔ اگر وہ ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ضمانت اس کے لیے نہیں ہے۔ روزوں کے فضائل کو لے کر کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منہ احد غیرہم، کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے اور روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو ہم
बारहा इस मौसम के अंदर सुनते हैं और आइंदा भी सुनेंगे, जिसमें अल्लाह के नबी ने जब पहले मिंबर के कदमचे पर कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे पर कहा आमीन, तीसरे पर कहा आमीन। सहाबाए किराम ने इसकी वजह दरियाफ्त की तो अल्लाह के नबी ने तीनों की वजह बयान की। उनमें से एक आपने फरमाया कि फ़क़ाला इन्ना जिब्रीला आतानी फ़क़ाला मन अदरका शहर रमज़ान फलम युग़फ़र लहू फ़दख़ल अन्नार फ़बअदहुल्लाहु कुल आमीन फ़क़ुल्तु आमीन। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा कि जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न कराई वो शख्स जहन्नम में दाखिल हुआ, अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। लिहाजा जिब्रील ने कहा कि कहिए आप आमीन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। हम सब जानते हैं कि फरिश्ते कोई भी जर्रा बराबर कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। यफ़अलून मा युअमरून, वो वही कुछ करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है। लिहाजा अल्लाह ताला का ये हुक्म है जिब्रील के लिए कि अल्लाह के नबी तक ये बात पहुंचाए और आप खुद जो है वो दुआ मांगे और जिब्रील से अल्लाह के नबी से कहें कि उसके ऊपर आमीन कहें। तो हुक्म अल्लाह का, दुआ जिब्रील की, आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब उस इंसान का अपनी तबाही से बचना, अल्लाह ताला की रहमत से दूर होना अब मुमकिन नहीं है। इस महीने के अंदर कई ऐसी सपोर्टिव चीजें हैं, मुआविन चीजें हैं जो इंसान के लिए सबब बनती है उसके दिल के अंदर तकवा के आने का, उसके नफ्स के तज़किये का, उसकी इस्लाह का जरिया बनती हैं। ऐसा माहौल अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर बनाया है, इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने बनाया है। खुद इस उन्वान के ऊपर एक मुफस्सल गुफ्तगू हो सकती है कि किस तरीके से ये महीना सपोर्ट करता है, किस तरह ये महीना मुआविन बनता है। उनमें से चंद अगर हम देखें तो शैतान का जोर इस महीने में कम हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा जा रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, कि जब ये महीना आता है रमजान का तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जंजीर में जकड़ दिया जाता है। गोया कि हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है अल्लाह के अहकामात की पाबंदी के लिए। किस तरह से ये महीना सपोर्ट करता है इंसान की इस्लाह के लिए, एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। उनमें से दूसरा नुक्ता ये है कि इस महीने के अंदर जब इंसान रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, तो रियाकारी के इम्कानात जो है वो मादूम हो जाते हैं। किस तरह से? सभी रोजा रखते हैं, सभी नमाज पढ़ते हैं, छुपना तो उसको पड़ता है जो रोजा नहीं रखता। शर्म उसको आती है कि जो रोजा नहीं रखता, रमजान की पाबंदी नहीं करता। लिहाजा अल्लाह के अहकामात को वो छुप छुप कर तोड़ता है। मगर सारा के सारा माहौल दुनिया के अंदर जो है वो अल्लाह की इबादत का, रोजों का होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरक, मन सामा युराई फकद अशरक, मन तसद्दक़ युराई फकद अशरक। जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखाने के लिए सदका किया उसने शिर्क किया, जिसने दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। अब देखिए कोई कंपनी है जिसके अंदर कंपनी का एक उसूल है, ज़ाब्ता है कि सबके लिए यूनिफॉर्म है। अब जाहिर सी बात है कि
सब का एक जैसा जब यूनिफॉर्म है तो कोई अपने कपड़े की नुमाइश कैसे करेगा? हाँ, जब आजादी हो तो उस वक्त जो है वो हर इंसान इस बात की कोशिश करेगा कि वो ऐसे कपड़े पहने कि सबसे नुमाया और अलहदा नजर आए, लोग उसको देखें। मगर सभी रोजे से आप दिखाओगे किसको? इस तरह से इसके अंदर रियाकारी के इम्कानात मादूम हो जाते हैं। तज़किया नफ्स के लिए इतना ये खुशगवार मौसम है कि वाकईतन अफसोस है उस इंसान के ऊपर जो इस महीने से फायदा नहीं उठाता। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया कि निकाह करो, इस्तेदाद अगर है, और अगर नहीं तो रोजे रखो, इसलिए कि नफ्स पर काबू पाने के लिए, उसको कुचलने के लिए रोजा बहुत मुआविन साबित होता है। अब जाहिर सी बात है, रमजान के महीने में जब सभी एक काम कर रहे होते हैं तो इंसान को उससे सपोर्ट मिलता है। बाकी और दिनों के अंदर इंसान के लिए एक रोजा भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, नफल रोजा अगर होते। मगर इस महीने में बड़ी आसानी के साथ में पूरे महीने के बच्चे बच्चे रोजे जो है वो रख कर जो इस महीने को गुजार देते हैं। एक दूसरे से कुव्वत और ताकत मिलती है। अरे इतना छोटा बच्चा रोजा रखता है तो मुझे क्या हुआ है, इतना बूढ़ा इंसान जब रोजा रख सकता है तो मुझे क्या हुआ है। तो जिस तरह से एक दीवार दूसरी दीवार के लिए उसको कुव्वत देने की वजह बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से रमजान के महीने में तमाम मुसलमान एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट, एक कुव्वत पहुंचाने का जरिया बनते हैं। तो बहरहाल जैसे कि ये कहा गया कि ये महीना वो है कि जिसके अंदर कई ऐसे असबाब जमा हो जाते हैं कि जो इंसान की इस्लाह के लिए मुआविन बनते हैं। तो इससे भरपूर फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो इस महीने के लिए, इसकी आमद से पहले उसके इस्तकबाल की तैयारी करे। इस्तकबाल के कुछ तकाजे हैं। आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई गेस्ट आने वाले हैं, आप उनका इस्तकबाल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हो, जज्बाती तौर पर, इमोशनली तौर पर अपने आप को तैयार करते हो। वो आएंगे तो ऐसा होगा, यूं करेंगे, उनकी मेहमान नवाजी ऐसे करेंगे, उनका वेलकम ऐसा करेंगे, जाते हुए उन्हें ये तोहफा देंगे। इमोशनली इंसान तैयार होता है, मेंटली तैयार होता है और फिजिकली अपने आप को तैयार करता है। इस्तकबाल के 3 तकाजे हैं। मेंटली आदमी अपने आप को तैयार करे, उसके लिए जज्बाती तौर पर इमोशनली अपने आप को तैयार करे और जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार करे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम ख़वातीन जो है वो शाबान के महीने में अपने क़ज़ा रोज़ों को मुकम्मल कर लेते थे। इट इज़ अ प्रिपरेशन, ये तैयारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा कसरत के साथ में इस महीने के अंदर रोजे रखा करते थे। क्यों? ताकि अपने आप को उस महीने के लिए तैयार किया जा सके। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निस्फ शाबान के बाद आपने रोजा रखने से मना किया। क्यों? इसलिए कि असल जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए, कमजोरी का शिकार हो जाए, ज़ौफ का शिकार हो जाए। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? इस्तक़बाल रमजान की। तो फिर खुलासे कलाम के तौर पर ये कि ज़हनी तौर पर हम अपने आप को तैयार करें, जिस्मानी तौर पर तैयार करें और जज्बाती तौर पर इमोशनली अपने आप को तैयार करें। वरना फिर ये रमजान क्या होगा, जैसे रूटीन के अंदर आता है, आएगा, रोजे रखेंगे, चला जाएगा। रमजान के इब्तिदाई रोजों के अंदर एक जोश और खरोश होगा, जैसे ही 7-8 रोजे गुजर जाएंगे वो जोश ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आखिरी हिस्से में फिर दोबारा एक जोश उमड़ आएगा और इस तरीके से बात खत्म हो जाएगी, आई और गई हो जाएगी। बस एक रस्मी तौर पर हम इसको गुजार कर इस महीने को बाबरकत खत्म कर देंगे। रह गई रस्म अज़ा
रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। तो ये बड़ी नाकदरी है कि इंसान इसको एक रस्मी तौर पर जो इस महीने को गुजार दें। लिहाजा इसके इस्तकबाल के लिए ज़हनन जो इंसान अपने आप को तैयार करे वो इस तरह के अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कौल को अपने सामने रखे। कहते हैं कि जब मुझ पर सूरज गुरूब हो जाता है और मैं गुज़िश्ता दिन के साथ मवाजना करता हूं, तकाबुल करता हूं कि मेरा आज का दिन भी बिल्कुल उसी तरह गुजर गया जैसे कल का गुजरा था, अमल के एतबार से, तकवा के एतबार से, तज़किया के एतबार से उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जैसे कल था वैसे ही आज भी है, मैं अपने आप को नुकसान में समझता हूं, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। ये कल के मुकाबले में आज कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। अरबी जुबान के अंदर एक मकूला है, मनिस्तवा यौमान फहुवा मग़बूनुन, जिसके 2 दिन बराबर बराबर गुजर गए वो इंसान नुकसान में है, घाटे में है। दुनियादारी में ये बात समझ आती है। एक ताजिर ने आज दिन भर की जो कमाई हुई है उसके अंदर मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उसको मिला है, बड़ा हिस्सा मिला है, मुनाफा हुआ है, उसका प्रॉफिट हुआ है, मगर वो उस प्रॉफिट को गुज़िश्ता दिन के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करता और कहता है कल जितना फायदा हुआ था उतना आज भी हुआ है, ये तो नुकसान है, कल के मुकाबले में थोड़ा तो ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया के अंदर ये उसूल समझ आता है, मगर क्यों हमें ये दीन के अंदर समझ नहीं आता। अगर हमारा पिछला रमजान भी जैसा था वैसा ही ये रमजान अगर गुजर जाए तो फिर मेरे लिए, आपके लिए ये अफसोस करने की जगह है। बेहतर होना चाहिए कि जिस तरह दुनिया में एक उसूल है कि है खूब से खूब तर कहां, दुनिया में जैसे बेहतर से बेहतर की तलाश होती है, ऐसे ही रमजान को लेकर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि मेरा ये रमजान पिछले रमजान से बेहतर होना चाहिए। लिहाजा इसके लिए दूसरी जो चीज है वो ये कि इंसान ये समझ ले कि शायद ये उसका आखिरी रमजान है, इसके बाद अब उसको मौका नहीं मिलने वाला। और ऐसा क्यों ना हम सोचें, मौत को याद करना ये समझदार मोमिन की अलामत अल्लाह के नबी ने बताई। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता रमजान में बहुत से लोग हमारे साथ थे, आज नहीं है, गुजर गए। क्या हम इस बात की जमानत ले सकते हैं कि जितने हमारे अड़ोस पड़ोस में इस विकरोली के अंदर लोग रहते हैं अगले रमजान को पाएंगे? तो अपने ताल्लुक से सोचना कि शायद ये मेरा आखिरी रमजान है, इसलिए मुझे अब इससे भरपूर फायदा उठाना है। और जब हम पहला रोजा गुजारें तो ये समझें कि ये मेरा आखिरी रोजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के अंदर जान और रूह पैदा करने का ये जो उसूल और ज़ाब्ता बताया कि तुम नमाज को इस तरह पढ़ो कि समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है, ये मेरा आखिरी रोजा है, ये मेरा आखिरी रमजान है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलने का। और मौत के वक्त तो हर इंसान पछताएगा, ये उसकी दिल की भूख होगी, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ऐ मेरे रब के मेरी इस मौत को, इस अजल को थोड़ा मौखर क्यों नहीं कर दिया गया कि मैं नमाज पढ़ता, सदका करता, नेक लोगों में शामिल हो जाता। तो जाहिर सी बात है कि ये सोच, ये जहन हम अपना बनाएं कि ये मेरा आखिरी रमजान है, और हर रोजे के ताल्लुक से सोचिए ये मेरा आखिरी रोजा है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज हमारे लिए बड़ी फिक्र के साथ में मदद मिलेगी कि हम अपने रोजे को अच्छी तरीके से गुजारें, अपने रमजान को अच्छी तरीके से गुजारें। इसमें कई एक रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका जरूरी है कि हम इस महीने में उसको तर्क कर दें, अपने जहन को बनाएं, खास करके इसको, मोबाइल को।
ذہن بنائیں کہ اس کے ساتھ میں ہمارا تعلق کم سے کم رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اس انسان کا اسلام جو ہے وہ احسن ہے، بہتر ہے. یہ اسلام کے حسن میں سے ہے، خوبی میں سے ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے، ترک کر دے جو لایانی ہے، بیکار ہے، لغو ہے، وقت کو برباد کرنے والی، صلاحیتوں کو برباد کرنے والی ہے. اس مہینے میں ہم اس کی مشق کریں، ایکسرسائز کریں. اسی کے ساتھ ساتھ بے شک نئے کپڑے سلانا، گھر میں راشن وغیرہ جو بھی ہے اس کی تیاری کرنا مہینے بھر کی، یہ ضرورت ہے، ضروری بھی ہے. اللہ ہم کو اس سے نہیں روکتا، نہ اللہ کے رسول روکتے ہیں. مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ اس چیز کی فکر کے اندر، وہ چاہے ڈیلی روٹین کے اندر ہو، شام کی افطار کا معاملہ ہو، صبح سحر کی تیاری کا معاملہ ہو، رمضان کے کپڑے سلانے ہو، گھر کی جو ہے وہ رنگ و روغن ہو، سجاوٹ ہو، صاف صفائی ہو، ساری چیزیں ہوں. ان ساری چیزوں سے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. بالکل ذہن کے اندر اس کو لے کر فکر نہ رہے، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے کسی کے لیے ایسا معاملہ کیا ہے کہ روز کنواں کھودو، روز پانی پیو، تو وہ معاملہ دیگر ہے. مگر اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے مالی حالات کو اگر درست کرے گا انشاءاللہ، تو میں رمضان کے اندر اپنے آپ کو ان تمام فکر سے، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کر لوں گا. جو کپڑے سلانے ابھی وقت ہے سلا لیجئے، تیاری کر لیجئے. جو بھی تیاریاں ہیں اس کی مادی تیاریاں اس کو پہلے سے کر لیں. رمضان میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دھرتی کے اوپر پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور شیطان کی پسندیدہ جگہ بازار ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کے لیے تیار کریں، گھر کی عورتوں کو، کہ وہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم بازاروں میں جائیں. اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر، اور اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہے کہ وہ مسجدوں میں آ سکتی ہیں قیام اللیل کے لیے، تو اپنی اس مہینے کے لیے وہ اپنی منصوبہ بندی کریں، بازار میں کم سے کم جائیں. یہ منظر جو ہے وہ ہمارے سماج سے اب مفقود ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے مرد حضرات تو مسجد میں چلے آئے، اب مردوں کو افطار کرا کے کھانا کھلا کے فارغ ہو گئی، اب نکل پڑی بازار میں شاپنگ کے لیے. تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا ایک مسلمان کو انفرادی طور پر اپنے تاحیات زندگی کا یہ معمول بنا لینا چاہیے. تاحیات ٹل ڈیتھ. رمضان میں کوئی خرید و فروخت نہیں، جو ضروریات ہے پہلے سے اس سے فارغ ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. کبھی کبھی فرض نماز بھی انسان کی چھوٹ جاتی ہے اس کے چکر کے اندر. اور اس مہینے کے اندر نفل کا درجہ فرض تک پہنچ جاتا ہے، اور فرض کا درجہ اللہ تعالیٰ 70 گنا سے 700 اور کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اس مہینے کے اندر عمرہ حج کے ثواب کے مترادف ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے فرض نماز چھوڑ دے شاپنگ کے چکر میں، بازاروں کے چکر میں. تو ان تمام چیزوں کو جو رکاوٹ بنتی ہے، روڑا بنتی ہے، اس کو دور کرنا، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کرنا، فری کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ کو معلوم، ہمارے دل میں کس طرح کے جذبات ہیں واللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بندہ جب ایک قدم آتا ہے اللہ تعالیٰ 10 قدم آتا ہے، بندہ چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے، دماغ سے، دل سے، جسم سے اسٹرگل کریں گے، اسٹرگل ہارڈ کریں گے، ہم ان کے لیے دروازے اور راستے کھولتے چلے جائیں گے.
ہم کو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ پلان کرنا، منصوبہ بندی کرنا، جذباتی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا، جسمانی طور پر تیار کرنا، تمام مادی چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ سب کے سب استقبال کے تقاضوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے پیٹرن یہ ہونا چاہیے، پلان یہ ہونا چاہیے، میرا ایک روزہ 24 آورس رمضان کے میرے ایک دن کیسا گزرے گا، اس کا پلان کرے انسان، اس کی منصوبہ بندی کرے، اور پھر اس پلان کو 20ویں روزے تک جنرلائز کرے۔ ایک روزے کا پلان کرے 24 گھنٹے کا رمضان کے، اور اس ایک دن کا جو پلان ہے اس کو 20 روزوں تک اس کو جنرلائز کرے۔ یہی ہوتی پہلے ڈائی بنتی ہے اور پھر اس کا پروڈکشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ایک دن کے روزے کا پلان کرنا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر جو ہے وہ رات میں سونے تک ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے اس کا منصوبہ کرنا ہے، اور پھر اس کو 20 دنوں کے اوپر ڈیوائڈ کر دینا ہے کہ میرے 20 روزے ایسے گزریں گے۔ کیونکہ پھر آخری 10 میں اور تھوڑا شدت عبادت کی، اللہ تعالی سے دعاؤں کی، رات کے قیام کی، اس کو بڑھا دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو مجھے اپنی فضل سے، اپنی توفیق سے میرے مقدر میں لکھ دے، مجھے اس رمضان کے اندر داخل کر دے، مجھے یہ رمضان مل جائے، دعا کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اس میں اگر ایک دن ہم کو مل جائے رمضان کا، وہ کتنا اہم ہے، کتنا قیمتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آج اخباروں کے اندر، مساجد کے اندر اگر یہ اعلان ہوا کہ بھئی آج چاند رات ہو سکتی ہے، لہذا ہر کوئی چاند دیکھنے کی کوشش کریں، تو اگر ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات میں سے، اندر سے، دل سے یہ آواز آتی ہے، کسی کی زبان پر بھی آ جاتی ہے کہ ایک دن آج کا بھی مل جائے تو تھوڑا اچھا ہے، آج چاند اگر نہ ہو کل کا ایک دن اور مل جائے تو اچھا ہے۔ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا وہ جلد از جلد داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی ٹھیک سے مثال تو نہیں یاد آ رہی ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی موقع پر انسان موقع حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے کہ یہ پہلی صف میں، اس میں میرا موقع مجھے مل جائے، پتہ نہیں بعد میں محروم رہنا پڑے، تو سب بھیڑ بھاگ پڑتی ہے کہ میں اس دروازے سے بس داخل ہو جاؤں۔ ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں، مگر ایگزیکٹ کوئی ایونٹ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اس کو یہاں پر پیش کروں، مگر ہم سب کا تجربہ ہے کہ میں بس سب سے پہلے انٹر ہو جاؤں اس گیٹ میں سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤں اور محروم رہ جائے۔ بس 10 سیٹیں بچ گئی ہیں، بچے کمپیوٹر بھی بیٹھتے ہیں، اتنی سیٹیں بچی ہیں، بس خالی ہیں، میرا نمبر لگ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ تاخیر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک دن اور مل جائے، کیا ان 24 آورس میں اللہ کی زمین کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، کلمہ گو ہیں پھر بھی گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، ان کے مقدر میں جو تھا وہ ہوا، مگر اسلاف کی جو احساسات تھے وہ کیا تھے کہ میں بس انٹر ہو جاؤں، رمضان کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس لیے آج اگر چاند رات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہو جائے گا کہ چاند ہوا اور میں رمضان میں داخل ہو گیا۔ یہ احساسات ہمارے دل کے اندر ہونے چاہیے، نہ کہ ایک ایکسٹرا دن مل جائے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ معمول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 مہینوں کا ہے، آپ کی سنت اور صحابہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا، کہ ہر مہینے کا روز ہر مہینے کا چاند وہ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ دعا بڑی پیاری ہے اس میں۔ رمضان میں اس کی پابندی کریں، 12 مہینے اس کی پابندی کریں،
इस दुआ को पढ़ने की। जनवरी से लेकर फरवरी की एक एक तारीख हमको याद है, रमजान के महीने और उसकी पहली तारीख और उसका चांद देखकर ये दुआ पढ़ना कितनी जाने दुआ है। इसकी जामियत को आप देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान हर महीने की पहली तारीख को, अल्लाह बड़ा है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा। एक रिवायत में ईमान भी आता है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल ईमान बिल युम्नि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह, इस चांद को तो हमें दिखा ईमान के साथ और अमन के साथ, इस्लाम के साथ और सलामती के साथ, और हमें उस काम के करने की तौफीक दे जिसे तू महबूब रखता है। इस पूरे महीने में मैं वो काम करूं जो तुझे पसंद है। असलाफ की दुआओं में ये दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा। ऐ अल्लाह, मुझे उस काम की तौफीक दे जिसे तू महबूब रखता है। तो ये दुआ देखिए कितनी जामे, ये एक महीने की दुआ है। ये महीना पूरा मुझे अमन के साथ, ईमान के साथ दिखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो और तुम्हें मौत ना आए मगर यह है कि तुम इस्लाम पर और ईमान पर तुम्हें मौत आए। 12 महीनों के अलावा कोई 13वां महीना भी है कि हमने से कोई इसके अलावा किसी महीने में मरने वाला है? कोई ना कोई एक महीना है जिसके अंदर हमारी मौत वाक़ई होने वाली है। तो अगर हमने चांद को देखा तो हम क्या मांग रहे? अगर मुझे नहीं मालूम इस महीने में मेरी मौत है तो ईमान और अमन के साथ हमें दिखा, सलामती और इस्लाम के साथ मुझे दिखा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इतनी बड़ी नेमत है इस दुआ की सूरत में जो अल्लाह के नबी ने हमें दी है। अगर हम इससे महरूम हैं तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम कितना बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। तो दुआ, उसका एहतमाम करना। इसी के साथ साथ आप देखें कि रमजान का आगाज हो गया, एक दिन का प्लान हो, इसके अंदर कोई चीज आप अगर और रंग भरना चाहें तो हर इंसान का अपना इंफरादी ज़ौक़ है, इंफरादी फिक्र है, मगर एक आउटलाइन एक रोजे की होनी चाहिए। वो क्या है कि नंबर 1, सुबह आप सहर को उठते हैं, चांद देखकर रमजान का आगाज करते हैं तो सुबह सहर के लिए उठते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तसहरू फइन्ना फी सुहूरी बरकतुन। सहरी करो इसलिए कि अल्लाह ताला ने सहरी के अंदर बरकत रखी है। तो अब अपने माइंड को बना लेना, माइंड सेट कर लेना कि मेरा एक भी रोजा बगैर सहरी के नहीं होगा। ये ऐसा तरबियत का महीना है, ये ऐसे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के तरबियत का महीना है। सहरी करना है और फिर सहरी के अंदर अगर ताखीर करें तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का पहलू भी इसके अंदर दाखिल हो गया। सहरी तो कर ही रहे, 1 घंटा पहले क्यों, 2 घंटा पहले क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहर में ताखीर करो। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को तरजीह देते हुए सहर करना है, मगर इस बात की कोशिश करना है कि सहर में हम ताखीर करें। फिर सहर में बरकत है। अब जाहिर सी बात है, बरकत क्या चीज है? हर इंसान, हर मुसलमान चाहता है बरकत, उम्र में बरकत हो, फिक्र में बरकत हो, जज्बात और एहसासात मुस्बत जज्बात में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, माल में बरकत हो, औलाद में बरकत हो। बरकत के माने होते हैं कि जो भी चीज अल्लाह ने दी है वो किफायत कर जाए, कम न पड़े, कम न पड़े। कमी ना हो उसके अंदर। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने बरकत को सहर में रखा है, और अगर हम नींद के गलबे की वजह से सहर को छोड़ देते हैं तो क्या कुछ अपना नुकसान कर लेते हैं।
اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تبا آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے مجھے، دیٹس آل۔ نیند کو قربان کر کے اٹھنا ہے۔ لہذا سحر سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے، مگر انشاءاللہ ہم اس کو کلب کر کے دیکھیں گے، ملا کر دیکھیں گے۔ اس وقت اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، پھر ادھر کلب کریں گے۔ ایک کام اور کون سا کرنا ہے؟ یہ 2 وقت میں ضرور کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، سحر سے پہلے، افطار سے پہلے۔ اس کو کلب کر کے ہم اس وقت دیکھیں گے جب افطار کا، روزے کے اندر جب ہم اس جگہ پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، مخالفت نفس کی مخالفت صبح سے شروعات ہوتی ہے اس کی، اس لیے کہ نفس امارہ اس کی بات مانتے مانتے 11 مہینوں میں ہمارا نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ پہلوان ہو چکا ہے نفس امارہ۔ 11 مہینے تک ہم نے اس کی ہر بات مانی ہے، ہر بات مانی ہے، اس مہینے میں اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اس مہینے میں ہم نفس لوامہ کی بات مانیں گے، نفس مطمئنہ کی بات مانیں گے۔ لہذا نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے میرا رب جس کے اوپر رحم کرے، نفس امارہ تو لے جاتا ہی برائی کی طرف ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں سونا ہے، اور سونے کے لیے آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ سب سے بہترین جو نیند کا پرائم ٹائم ہے وہ وہی ہے جو سحر کا وقت ہے، پرائم ٹائم۔ ایسی گہری نیند آتی ہے، ایسی میٹھی نیند آتی ہے کہ آدمی نیند کے اندر ذرا بھی بخل نہیں چاہتا۔ ہمارے استاد نے ایک بہت ہی عجیب بات بتائی تھی، انسان اس پر غور نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان کا کیریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس سے اچھا انسان، اس سے اچھا انسان، مگر ایک انسان جو رات میں 3 بجے سویا ہے، تھک ہار کے آیا ہے، اس کی آنکھ بس پیٹ ٹکاتے ہی لگ چکی ہے، اور بس 1.5 گھنٹہ ہوا ہے اس کی آنکھ لگے ہوئے، گہری نیند میں جا چکا ہے وہ، اور اچانک دروازہ ناک ہوتا ہے پڑوس سے کہ بیمار ہیں، اسپتال پہنچانا ہے۔ یہاں پر انسان کا کیریکٹر اور کردار پتہ چلتا ہے، اس کے کردار کی اونچائی یہاں معلوم ہوتی ہے۔ نیند کے معاملے میں انسان اچھے کے سامنے بغاوت کر دیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور جتنے بھی کھانے اور پکوان وہ پسند کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ڈش ہے، اس کی مرغوب اور محبوب ڈش ہے، صبح نیند میں بیدار کریں اس کو اور کہیں کہ یہ تمہاری پسندیدہ ڈش ہے، لو اس کو، ہٹاؤ اس کو، مجھے سونے دو۔ یعنی اپنی محبوب سے محبوب ڈش کو بھی، پسندیدہ ڈش کو بھی اس وقت وہ پسند نہیں کرتا ہے سونے کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر سورہ مزمل کے اندر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، کہ صبح کا جو اٹھنا ہے وہ نفس کے اوپر بہت بھاری ہے، بہت سخت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ، بہت شدید ہے صبح کا اٹھنا۔ قرآن نے گواہی دے دی، شہادت دے دی، جس اللہ نے انسان کو تخلیق کیا وہ انسان کے تمام چیزوں سے واقف ہے، انسان کے لیے صبح کا اٹھنا بہت بھاری ہے۔ ہاں مگر اس میں ایک فائدے کی بات یہ کہ جو بھی بات زبان پر آتی ہے بالکل سیدھی بات آتی ہے، ذہن بالکل فریش ہوتا ہے، اور دل کی بات زبان پر آتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مگر جیسے جیسے دن نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، بات کے اندر جو دل سے نکلتی ہے، دماغ سے نکلتی ہے، اس کے اندر ملاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس طرح سے جو ہے وہ نفس کے اوپر نیند
मरगूब है मगर उसकी मुखालिफत हम करते हुए उठते हैं। खाना आदत नहीं है सुबह में खाने की, आधी रोटी खाना मुश्किल है, एक रोटी खाना मुश्किल है, मगर खाना है। और अगर इसके अंदर एक चीज और मिला ली जाए कि अगर शहर में खजूर भी हो जाए तो फिर और क्या बात है। इसका इस्तेमाल 30 दिनों तक मैं जरूर करूंगा। मेरे रमजान की सहर का ये मामूल होगा, उसके अंदर खजूर जरूर होगा। इफ्तारी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सहर में ये होना चाहिए, इसके बगैर सहरी मेरी नहीं होती है। कितने लोगों की जुबान से सुनते हैं हम, मगर मेरी सहर के अंदर खजूर जरूर होनी चाहिए। जितना समेट सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी तरफ जाना है। लिहाजा जो है वो आप देखिए, रोजे के अंदर नियत का मामला है। नियत क्या, एक माइंडसेट है। रोजे की नियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम युजमिउ सियाम क़ब्ल अल फज्र फला सियाम लहू। अबू दाऊद की रिवायत तिरमिज़ी में भी है कि जिसने फजर से पहले पहले रोजे की नियत नहीं की उसका रोजा नहीं। मालूम हुआ सुबह के अंदर ही नियत कर ले। नियत के कोई मखसूस अल्फाज नहीं है, ना ही कोई मखसूस अल्फाज अगर जो है वो कार्ड के ऊपर रमजान के लिखे हो तो उसको पढ़ना चाहिए। दिल की नियत के मैंने अल्लाह आज तेरी रजा के लिए रोजा रखा, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, रमजान का रोजा रखा। दिल के अंदर नियत हो, इंसान इंटेंशन हो। अब रोजा क्या है इसको हम समझे तो सही। सामा यसूम सौमन के माने होते रुकना। मरियम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, उनसे कहा गया था कि ये कहना अगर तुमसे सवाल पूछे इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने आज रहमान का रोजा माना है, किसी से बात नहीं करूंगी, रुक जाना। तो मैंने रोजा रमजान का आज का रखा है, इसका मतलब मैं रुक जाऊंगा। किस चीज से रुक जाऊंगा? शर के सुनने से, शर के बोलने से, शर के देखने से, शर की नीयतों से, आगा जवारे से कोई शर के, अपने पूरे वजूद को मैं रोकूंगा। ये मेरा रोजा है, मैंने नियत की है। कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा, कोई मुझे इश्तियाल दिलाएगा, कोई मुझे नफरत दिलाएगा, कोई गुस्सा करना चाहेगा, मैं आज रोजा रख रहा हूं, मैं अपने आप को रोक लूंगा। जब माइंडसेट बनाता है इंसान तो उसके लिए बहुत आसान है। कितना भी गुस्सा दिलाओ ना, वो नहीं करेगा गुस्सा, सुबह में अगर अपने माइंड को बनाया है उसने। लिहाजा यहां पर आप देखें अल्लाह के नबी की एक दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनियती। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं कान के शर से, आंखों के शर से, जुबान के शर से, दिल के शर से और मनी के शर से। मैं अपने रोजे के सवाब को कम नहीं कर होने दूंगा। मेरे रोजे की वैल्यू जो होगी उसको मैं कम होने नहीं दूंगा। उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, कम नहीं करना है, तो ये तमाम आज़ा जवारे इसको रोकना है। हर उस काम से जिससे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसके रसूल ने हुक्म दिया। अब जाहिर सी बात है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, खैर और शर की पहचान इंसान को अच्छी तरह है। इसी तरीके से जो है वो आप देखें कि रोजे का जो मकसद है वो है तकवा, लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तकवा क्या है? तकवा है बचना। सौम क्या है? रुकना। और तकवा क्या है? बचना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, मसदर रूट वर्ड वही है, ऐ अहले ईमान बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने घर वालों को। बचना। अब एक रिवायत को अक्सर आप सुनते हैं, शायद अब भी सुने, मगर वो रिवायत के ताल्लुक से मुहक्किकीन ने कहा कि ये सही नहीं है रिवायत। उमर इब्न अल-खत्ताब से निस्बत देकर बयान की जाती है कि आपने पूछा कि तकवा क्या है, मुझे समझाओ। तो उन्होंने बताया कि कोई इंसान कांटेदार झाड़ी में से जब गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा? तो कहा अपने कपड़े को समेट लेगा कि कोई दामन से कांटा ना उलझे। इसको उमर इब्न अल-खत्ताब की तरफ और एक सहाबी की तरफ मंसूब किया जाता है, मगर मुहक्किकीन ने कहा कि बात ये ठीक नहीं है।
हाँ, मगर मिसाल अच्छी है, सिर्फ मिसाल के तौर पर इसको देखें। मिसाल क्या है कि एक इंसान बचे कैसे, जिस तरीके से नीचे गलाजत है, मस्जिद के लिए सुबह में फजर की नमाज के लिए वो निकला है, रास्ते में गंदगी है, नापाकी है, नजासत है, बारिश का मौसम है, कीचड़ है, नापाकी है, नजासत है, कांटे हैं, कांच पड़ी हुई है, कांटेदार झाड़ियां हैं, और यहाँ वहां से दरिंदों का भी इम्कान है। तो ऐसी सूरत के अंदर इंसान जो है वो अपने आप को बचते बचाते, टॉर्च से जलाते हुए कोई गंदगी ना आ जाए, बचते बचाते अपने आप को अल्लाह ताला के घर तक लाता है। ऐसे ही सुबह रोजा रखने से लेकर इफ्तार तक बचते बचाते, कानों को बचाते, आंखों को बचाते, कदमों को बचाते 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 उसको इफ्तार तक पहुंचा देना है। लिहाजा जो है वो, अब आप देखें कि ये जो तकवा है इसके फवायद तो बहुत है, अपनी जगह एक मुस्तकिल उन्वान है, मगर सिर्फ 3-4 फवायद अगर आप सामने रखें जिसके लिए ये सारी दुनिया के लोग भागदौड़ कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग इसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं। एक, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए मखरज बनाता है। मखरज, एग्जिट पॉइंट। जब इंसान मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो सोचता है इसमें से मैं कैसे निकलूं बाहर। जब तुम मुसीबतों में गिरफ्तार होगे, अगर अल्लाह से डरोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एग्जिट पॉइंट बना देगा, उसमें से निकलने का रास्ता अल्लाह निकाल देगा। उन 3 लोगों के लिए नहीं निकाला अल्लाह ताला ने, जिनका दार का दहाना बंद हो गया। अल्लाह से डर कर उन्होंने तीनों ने एक एक काम किया या न किया, कि ये काम मैंने किया, ये काम न किया, उससे डर कर तेरी रजा के लिए अल्लाह ताला ने उनको उससे निजात दी, उनके लिए मखरज बनाया अल्लाह ने। ऐसे ही अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे, तकवा को इख्तियार करोगे, दिल में तकवा को लाओगे, अल्लाह से दुआ करोगे, नतीजे के तौर पर जब जिंदगी में किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगे अल्लाह ताला उसमें से तुम्हारे लिए एग्जिट निकाल देगा, अल्लाह ताला उसमें निकालने का रास्ता बना देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। इसी के साथ साथ वमन यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से तुमको रोजी पहुंचाएगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। हाँ, एक कैलकुलेशन है, महीना पूरा हो गया, अब तनख्वाह आने वाली है, फला पार्टी ने चेक दिया है, वो कल विड्रॉ हो जाएगा, फला पार्टी ने देने का वादा किया है, अप्रोक्सीमेटली महीने के आखिर में इतना तो आ जाएगा, ये तुम्हारा कैलकुलेशन है। मगर जहां तुम्हारा दिमाग नहीं पहुंचेगा, सोच नहीं पहुंचेगी, ऐसी जगह से अल्लाह ताला तुम्हें रोजी फराहम करेगा। अल्लाहु अकबर, ये बरकत है तकवा की, और वो रोजे के नतीजे में मिलती है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान की नेमत से नवाजेगा। फुरकान क्या है? फर्क करने की, तमीज करने की सलाहियत तुम्हारे अंदर देगा। ये शर है, ये खैर है, ये धोखेबाज है, ये वफादार है, ये धोखा दे सकता है, ये वफादारी कर सकता है, इसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें फायदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी तमीज करने की सलाहियत तुम्हें देगा। ये हक है, ये बातिल है, ये सच है, ये झूठ है, ये सुन्नत है, ये बिदअत है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अंदर तमीज पैदा कर देगा, तुम्हें फुरकान अता करेगा, फिर तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देगा। युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यग़फिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। बेशक अल्लाह ताला फजल वाला है और अल्लाह ताला अज़ीम है। रमजान का महीना ऐसा है कि इसके अंदर आप से आप कुछ चीजें इंसान में पैदा होती हैं, उनमें से एक है शुक्र। शुक्र के लिए एक तो इंसान जो है वो शुक्रगुजारी को लेकर इंसान जो है वो अपने अंदर समझबूझ पैदा करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। शुक्र और नेमत ये एक सिक्के के दो रुख है, जहां नेमत है वहां शुक्र है, जहां शुक्र है वहां नेमत है, वाइस वर्सा है। अगर आप शुक्र करोगे नेमत बढ़ेगी। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे और तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। नेमत और शुक्र एक सिक्के के दो पहलू हैं, लिहाजा जहां नेमत है वहां शुक्र है। लिहाजा आप देखें, बहुत से लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, मगर शुक्र करने के लिए एक सेंस पैदा करना जरूरी है इंसान के अंदर। नंबर 1 वो ये है कि अगर मैं शुक्र करूंगा अल्लाह ताला और नेमत को देगा, तो इंसान शुक्र करेगा, क्योंकि इंसान को लालच है, होनी भी चाहिए, मगर मुस्बत, मुझे और नेमतें मिले, इसके लिए जो नेमत अल्लाह ने दी उसका शुक्र अदा करें। नंबर 1 अल्लाह ताला ने फरमाया,
کہ अल्लाह तबारक व तआला किसी भी नेमत को छीनता नहीं है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसकी तर्जुमानी, इसकी तफसीर असलाफ और मुफस्सिरीन ने बरात की है, वाइस वर्सा की है। अभी तुम्हारे पास कोई नेमत अल्लाह ने दी है, अल्लाह इसको नहीं छीनेगा तुमसे, बदलेगा नहीं, छीनेगा नहीं ये नेमत, अगर तुम शुक्र करते रहोगे। और अगर तुम्हारे पास नेमत ही नहीं हो, बुरे हालात से गुजर रहे हो, तुम्हारी ये हालत भी नहीं बदलेगा अल्लाह ताला जब तक कि तुम अपने आप को न बदलो। तो अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी है, अल्लाह नहीं छीनता है जब तक तुम शुक्र करते रहते हो, बल्कि और इजाफा होता है उसमें। तो लिहाजा यहां पर एक ये है कि जो लोग नेमत के महरूम होने के डर से, ये थोड़ा सा ऊंचा दर्जा है, नेमत मुझसे चली ना जाए इसलिए शुक्र करते रहते हैं। और एक ये है कि आदमी जैसी नेमत पाता है तो बिल्कुल लापरवाह हो जाता है, अल्लाह को भुला देता है। अब ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है और छीनने के बाद इंसान को एहसास होता है भूख क्या होती है, समझो, महसूस करो, प्यास क्या होती है महसूस करो, भूख की तड़प क्या होती है महसूस करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 11 महीनों तक अल्लाह ताला ने अपनी ये नेमतें देता रहा, पीते रहे, खाते रहे। लिहाजा आज एक वक्ती तौर पर तुम्हारे लिए इन चीजों को तुम्हें रोक दिया गया, इन चीजों से, तो महसूस करो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और साथ ही साथ एक सोच और पैदा करो कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुसीबत से, मुश्किल से अल्लाह ताला ने बचाया, इस आजमाइश से बचाया, मगर अल्लाह के बहुत से बंदे हैं जो 11 महीने 12 महीने इन मुसीबतों से गुजरते हैं। लिहाजा उस माल का अमली शुक्र ये है कि उनको हिस्सेदार बनाओ, अपने माल में उनको हिस्सेदार बनाओ, उनकी जरूरियात को पूरा करो। भूख क्या होती है समझ आ रही है। लिहाजा जो है वो कई एक असबाब हैं जिसकी वजह से इंसान के अंदर शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। शुक्र के लफ्जी माने होते हैं किसी चीज का भरकर ओवरफ्लो होना। शकरतुन नाका, उस ऊंटनी को कहते हैं जिसके थान दूध से भर गए और उसमें से दूध छलक पड़ा। आइनुन शकरा, पानी का वो तालाब के जो भर गया लबालब और अपने हुदूद से निकल गया बाहर, छलक पड़ा। तो शुक्र ये है, इसके 3 दर्जे। शुक्र बिल कल्ब, ये फीलिंग से होता है, एहसास से होता है। शुक्र बिल लिसान, जुबान से शुक्र अदा करना। और शुक्र बिल जवारे, अपने आज़ा जवारे से, या जो नेमत अल्लाह ने दी है उस नेमत को उसी तरह इस्तेमाल करना जैसा अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। अब दिन भर के रोजों के नतीजे में इंसान के दिल के अंदर एक तकवा की रमक पैदा हो जाती है। जिस तरीके से, जिस तरह से मई के महीने में, अप्रैल के महीने से आगाज होता है और मई के महीने के अंदर चिलचिलाती धूप के अंदर हम अपने मुल्क के अंदर देखते हैं कि प्यास की वजह से जमीन फट जाती है, मगर ये गर्मी का मौसम जमीन के अंदर एक कैपेसिटी पैदा करता है। नीचे तक जमीन खुश्क होती चली जाती है, तो जमीन अपने अंदर एक कैपेसिटी पैदा करती है, अपने आप को तैयार करती है जून के महीने में बारिश जब होगी उसको ऑब्जर्व करने की ताकत अपने अंदर पैदा करती है। ऐसे ही दिन भर की भूख और प्यास, दिल की जमीन तैयार हो जाती है जब इसके अंदर दिन भर के रोजे में और बचने से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। रोजे में ये पोटेंशियलिटी है कि वो इंसान के दिल के अंदर तकवा पैदा करता है। फर्क आता है इंसान के 11 महीने के जीने में और रमजान के महीने में, रोजे की हालत में रमजान के महीने में फर्क आता है। ये क्या है? तकवा है। लिहाजा जो है वो आप देखिए कि अब इफ्तार का वक्त जब करीब आया, ये भूख किसके लिए है, ये प्यास किसके लिए, ये होठ खुश्क किसके लिए, ये अलग किसकी वजह से, किसके लिए सूखा है? उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, ये सब उसके लिए है। तो जिसके लिए इंसान करता है उसकी याद आती है उसको, और फिर वो अल्लाह ताला की हस्ती हो तो फिर इंसान के अंदर एक और भूख पैदा होती है, वो है दुआ की। और फिर इंसान जो है वो जब तकलीफ में होता है
تو پھر بات دل سے نکلتی ہے. جیسے صبح کے وقت بات دل سے نکلتی ہے، ایسے افطار سے پہلے بات دل سے نکلتی ہے. اس وقت میں خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ ایک مینو اپنے گھر کی عورتوں کو دینے کی بجائے گھر کا جو حاکم ہے وہ اپنے گھر کا ایک پرنسپل بنا لے، اصول بنا لے کہ 15-20 منٹ پہلے چولہا بند ہو جائے گا، گھر کا بند ہو جائے گا، اور گھر کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ پکڑ کے اپنی اپنی جگہ پر دعائیں مانگے گا. دعا مانگے گا اپنے لیے، دعا مانگے گا گھر والوں کے لیے، دعا مانگے گا اپنے ملک میں بسنے والے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے گا. ان میں سے کسی کو، اپنے کسی بھائی اور بہن کو نہیں بھولے گا، بالخصوص جو اس کو معلوم ہو کہ اس وقت دنیا میں میرا کون سا بھائی ہے جو تکلیف سے گزر رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دل کی آہوں کے ساتھ میں دعا مانگیں گے اپنے بھائی کے لیے. لہذا اب سنیے، ان آیتوں کے درمیان جو آیت ایک آئی ہے جس کا تعلق دعا سے ہے، انہی 5 آیتوں میں رمضان کے تعلق سے ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں قریب ہوں. جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. بندوں کو بھی چاہیے کہ میری بات کا جواب دیں، میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اس آیت کے تعلق سے شیخ سعدی رحمہ اللہ اور دیگر تفسیروں کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، اربنا قریب فنناجہ او بعید فننادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں. مناجات کس سے کریں؟ آہستہ آہستہ سرگوشی کرنا. یعنی کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکل رہی، کوئی ساؤنڈ نکل رہا ہے، مگر لفظوں کو میں پکڑ نہیں پا رہا ہوں. مناجات آہستہ آہستہ مانگے کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے کہ ہم اس کو ندا لگائیں، پکاریں. اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور دل میں جب درد پیدا ہوتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ خوب جم کر دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. اور یہی دعا فجر سے، سحری سے پہلے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں کے اندر، اس گھڑی کے اندر جو ہے وہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور اللہ خود ندا لگاتا ہے، فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مفلسی کو لے کر، اپنی مفلسی کو دور کرنے کی دعا مانگنے والا، بیماری سے نجات چاہنے والا، جس کی جو حاجت ہے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ وقت 11 مہینے تو ہم اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، مگر سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں. کیوں نہ ہم تھوڑا جلدی اٹھیں اور وضو کر کے، برش کر کے اور اچھی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے، جتنا ہم کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں شکر ڈالیں اتنا میٹھا ہے. خوشبو اللہ کے نبی کو پسند ہے، اگر ممکن ہو تو خوشبو لگا کر. بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے کتنا اہتمام کیا. فرض نہیں ہے مگر جتنا ڈالو گے شکر اتنا میٹھا ہوگا، تاکہ دل لگے. بدبو فرشتوں کو پسند نہیں. میسر ہو تو خوشبو لگا کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگے، دل لگا کر، دل سے بات نکلتی بھی ہے. یہ دونوں اوقات کے اندر 30 دنوں تک روزہ جو ہم رکھیں گے، 29 دن جو بھی اللہ میسر کرے، دعا ایک بھی دن میری مس نہیں ہوگی، سحر سے پہلے اور افطار سے پہلے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ افطار سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ الصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا. اب ان دونوں کو نبی نے ملایا. ایک روزے سے پہلے اس کے لیے خوشی. خوشی کس بات کی؟ دسترخوان کے اوپر اللہ کی نعمتیں بچھی ہیں. دیکھیے اس تربوز کو کیسا رنگ اللہ نے بھرا ہے. شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیک بنایا ہوتا، مگر نہیں ہے، بالکل سرخ بنایا. آنکھوں کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کھانوں پر تم غور نہیں کرتے،
साल भर बस कैसे पेट में उतर जाए और जुबान को कैसे जायका मिले। अरे कभी आंखों को भी तो तस्कीन पहुंचाओ कि अल्लाह ताला ने उसमें याद करो अल्लाह का कि अल्लाह तूने कैसे इसके अंदर रंग भरे हैं। फिर जब उसको अपने करीब ले जाओ तो उसकी खुशबू अल्लाह ताला ने जो है वो कुव्वत शाम्मा को तस्कीन पहुंचाता है। जब आप उसको मुंह में रखते हो तो जायका अलग है, और जब उसको आप चबाते हो उसके अंदर एक रिदम पैदा होता है और वो जायके को और बढ़ा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप दुआ पढ़ते हो, ज़हब ज़मऊ व बतल्लतिल उरूक व सब्बतल अजरू इंशाअल्लाह ताला। भूख मिट गई, प्यास मिट गई और जो है वो रगे तर हो गई और इंशाअल्लाह अजर साबित हो गया। अल्लाह ताला ने कितना कुछ जो है वो नेमतें दी है। घर वालों के साथ जब हम बैठते हैं तो ये नहीं कि बस टूट पड़े, उस वक्त कम से कम एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, कम से कम अगर हमने 100 लुकमे लिए हैं, 50 लुकमे लिए, 15 लुकमे लिए, कम से कम 5 लुकमे के वक्त तो गौर करें कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए दे रखी, हमारे दस्तरखान पर बिछाई हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। इसलिए जो है वो हर एक चीज के अंदर इबरत की निगाह डालें, अल्लाह ताला की नेमतों को तलाश करें। और फिर ये रोजा मुकम्मल हो गया, अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा कमर सीधी रहे रात में क़यामुल लैल के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन साम रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मन काम रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। और क़यामुल लैल के लिए सेम दूसरे अल्फाज है, जिसने अजर और सवाब की नियत से रोजे को रखा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ, जिसने अजर और सवाब की नियत से क़यामुल लैल किया उसके पिछले गुनाह माफ, जिसने रात के अंदर शब बेदारी की आखिरी रातों के अंदर उसके पिछले तमाम गुनाह माफ। तीनों का अजर और सवाब एक जैसा है, जो सवाब रोजे का वही क़यामुल लैल का, इक्वल। लिहाजा जो है वो यहां पर क़यामुल लैल। अब इस रोजे के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसी 5 आयतों में आता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया, इसके अंदर तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। सवाल तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, मगर सारे कुरान के पढ़ने वालों को हिदायत इससे मिल जाती है? हिदायत तो आम है मगर सबको मिलती है नहीं। जिस तरीके से अल्लाह ताला की बारिश बरसती है कि सारी जमीन लहलाने लगती है, सारी जमीन जिंदा होती है, सारी जमीन हरी भरी होती है, नहीं, बल्कि जो सगलाख जमीन है उसके ऊपर चाहे जितना पानी बरसे उसको कोई फर्क वाकई नहीं होता। तो फिर ये कुरान मजीद, इसका फायदा किसको होता है? इससे फायदा कौन उठाता है? हुदल लिन्नास से कौन उठाता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन के लिए हिदायत है। दिन भर रोजा रखने के नतीजे में दिल की जमीन में तकवा का बीज पड़ा और रात में जब वही की बरसात आयतों की सूरत में हुई तो फिर दिल की जमीन लहलहा उठती, दिल ताजा हो गया, मुत्तकी हो गया और परहेजगार हो गया और उसके अंदर अल्लाह की याद आई और अल्लाह के जिक्र से वो खूब जो है वो जमीन दिल की जो है वो लहलाने लगी खेती। और अल्लाह ने मिसाल दी है कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह हदीद के अंदर फरमाया, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून इअलमू अन्नल्लाह युहील अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। लोगों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह ताला की याद से डर जाएं, जो अल्लाह ताला ने हक नाजिल किया, या वो लोग उन लोगों की मानिंद न हो जाएं कि जिन्हें इससे पहले किताब का एक हिस्सा दिया गया तो उनके ऊपर एक तवील मुद्दत गुजरी तो उनमें से अक्सर लोग जो है वो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें की अक्सरियत फासिक और फाजिर है। उनकी मिसाल है तुम्हारे सामने। इससे पहले उनको किताब दी गई थी तौरात इंजील, तो मुद्दत गुजर गई उसकी उन किताब के बाद 1 साल 2 साल 100 साल उसके ऊपर जब उन्होंने गुजारे किताब के ऊपर
تو उनके दिल सख्त हो गए किताब के होने के बावजूद, जबकि अल्लाह की किताब क्या करती है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। दिल सख्त हो गए उनके, उनने मिसाल तुमने सुनी है इसकी। लिहाजा जो है वो आप देखिए, अब जब रात में कुरान मजीद को ये सुना जाता है, पढ़ा जाता है, तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जान लो कि अल्लाह ताला वो हस्ती है कि जो जमीन के मुर्दा होने के बाद उसको फिर दोबारा जिंदा करता है। और ये मिसाल अल्लाह ताला इसलिए तुमको देता है ताकि तुम इससे सबक हासिल करो, इससे अकल से काम लो इन अल्लाह ताला की आयात के जरिए से। और आप देखिए अल्लाह ताला ने वही के ताल्लुक से फरमाया, अल्लाह ताला ने वही को रूह कहा, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, के इस तरह से हमने ए नबी आपकी तरफ रूह को नाजिल किया है। मुराद कुरान की आयतों को नाजिल किया, अल्लाह ने इसको रूह कहा। हमारे वजूद के अंदर एक रूह भी है, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और 4 महीना 10 दिन गुजर जाने के बाद फरिश्ता रूह डाल देता, हमारे अंदर रूह भी है, और अल्लाह ने वही को रूह कहा। तो ये रूह से रूह का ये नाता है। तो फिर क्या होता है, जब इंसान इन आयतों को सुनता है तो उसकी दिली कैफियत बदल जाती हैं। इसीलिए आप देखिए हरम की नमाज का थोड़ा मंजर अगर मौका मिले तो रमजान के महीने में आप देखिए कैसी कैसी आयतें आती हैं, और इमाम यहां आकर क्यों रोने लगा, यहां पर क्यों घिग्गी बन गई, ये अब्दुल्ला इब्न रवाहा इस आयत पर क्यों रोने लगे, आयशा सिद्दीका इस आयत के ऊपर क्यों रोने लगी। कभी इंसान कुरान की आयतों को सुनकर खुशी के मारे रोता है, कभी इंसान अल्लाह ताला से डर के रोता है, कभी खुशी से रोता है, कभी डर के रोता है, और इतना रोने लगता है कि उसकी घिग्गी बन जाती है, घिग्गी बन जाती है। सहाबाए कराम, अल्लाह के नबी रात में क़यामुल लैल में जब कुरान को पढ़ते थे, ऐसे मालूम होता था जैसे आंधी के अंदर पानी खौल रहा है। रमजान के महीने में एक मरतबा शेख शुरैम कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह निसा की आयत के ऊपर पहुंचते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, ऐ मेरे बंदो मैं तुमको अजाब देकर क्या करूंगा अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बनोगे। इस आयत के ऊपर कम से कम 5 मिनट से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे थे और रोते जाते थे, और पूरा मजमा दाढ़े मार कर रो रहा था। ये कैफियत थी। हमारी ये कैफियत कब होगी, हमारे क़यामुल लैल की ये कैफियत कब होगी। कौन सी मस्जिद में 20 मिनट में खत्म हो जाती है, कौन सी मस्जिद के अंदर 15 मिनट में खत्म हो जाती है। कुरान और रोजे का बहुत गहरा कनेक्शन है, इंटरलॉक है, ये मरबूत है आपस में। लिहाजा जो है वो अल्लाह ताला ने ये कुरान जो दिया है बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने अब ये कुरान की आयतें जो हम सुनते हैं, इसमें 3 तरह से अल्लाह ने याद दहानी कराई है। बस 5 मिनट में हम इंशाअल्लाह खत्म कर देंगे। 3 तरह से याद दहानी अल्लाह ने कराई है। एक, तज़कीर भी आला-इल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को बार बार इंसानों के सामने लाया, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 31 मरतबा सूरह रहमान के अंदर यह आयत रिपीट होकर आती है। ऐसी कुरान की पूरे शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह अपनी नेमतें सामने लाता है ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह अपनी नेमतों के जरिए से याद दहानी कराता है। एक तरह की वो आयतें गुजर रही है हमारे सामने से, और फिर अल्लाह ने फरमाया फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तुबसिरून, इसमें तुम में से हर एक का जिक्र है, तुम में से हर कोई इंसान की सूरत, उसकी आदत, उसकी शख्सियत इस कुरान में है, इस आईने में है, तुम देखते नहीं हो। फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तुबसिरून, फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, इसमें तुम्हारा जिक्र है, तुम अक्ल से काम नहीं लेते। मैं कहाँ हूँ, मैं कितने पानी में हूँ। कुरान मजीद की एक एक आयत के ऊपर सहाबा इकराम अपने आप को पेश करते थे, अपने आप को पेश करते थे। अबू बकर सिद्दीक अपने आखिरी वक्त के अंदर उमर इब्न खत्ताब को तखलिया में लिया हुआ है, तन्हाई में लिया हुआ है, नसीहतें कर रहे इस दुनिया को छोड़ने से पहले। ऐ उमर, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, कितना पढ़ा? इब्तिदाई साबिकुन अव्वलून इस्लाम लाए, 13 साल तक जो कुछ नाजिल हुआ उसको पढ़ा, 10 साल तक नबी के साथ मदीना में पढ़ा, 25 साल हो गए, 2.25 साल का अरसा आपके खिलाफत का, 27 साल तक कुरान पढ़ते रहे।
کہتے میں نے جہاں تک قرآن مجید کو پڑھا ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما قد المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کی صفات کا ذکر کیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر پایا نہیں، فی ذکرکم افلا تعقلون، تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، تم دیکھتے ہو تم کون ہو، دیکھو اس کتاب میں اپنے آپ کو پہچانو، یہ کتاب تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے اس کو سمجھو، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، جیسے آئینے میں سنوارتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری برائیاں نظر آتی ہیں، اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو چیک کرو، اپنی اصلاح کرو، یہ بہترین موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیوں سے صرف نظر کیا، اس لیے کہ نیک سے نیک انسان بھی کوئی نہ کوئی خطا غلطی کرتا ہے، مگر صرف نظر کیا۔ اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کا ذکر کیا، ان کے بھلائیوں سے صرف نظر کیا کہ برے سے برا آدمی بھی اچھا کام کرتا ہے، تاکہ بندہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ ابو بکر جیسے دیکھتے تھے قرآن کو پڑھتے تھے، ایسے ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہم سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کو۔ لہذا جو ہے وہ یہ ہمارا رمضان جتنی اللہ نے زندگی دی ہے، قیام اللیل ہمارا بہترین ہونا چاہیے، ویسا جیسے صحابہ کا تھا، ویسا جیسے اسلاف کا تھا، اس لائن کے اوپر، اس مین اسٹریم کے اندر ہم کو آنا ہوگا۔ لہذا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کئی نعمتوں کا ذکر کیا، وہ نعمتیں جو زمین کے اندر سے ملتی ہیں، وہ جو زمین کے اوپر سے ملتی ہے، وہ نعمتیں جو سمندر اور دریاؤں کے گہرائیوں سے ملتی ہے، وہ جو سطح سمندر سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے بڑھتے ہیں، اس کے اندر انسانوں کے فائدے کا سامان ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی نعمتوں کا، ساری نعمتوں کا احاطہ کیا یکے بعد دیگرے، اور ساری نعمتوں کے اوپر اور بھی ٹاپ، سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن۔ اس لیے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر تم کو خوشی منانا ہے تو اس کے اوپر مناؤ۔ اللہ کی قسم ہمارے اسلاف جو صحابہ تھے جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے تو رو دیتے تھے، اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت ہم کو دی ہے، اللہ کی قسم اس دھرتی کے اوپر اللہ کی کتاب سے بہترین نعمت کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہے، اور بہت مبارکبادی کے وہ لوگ حقدار ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ انہیں خوش کر دے گا جو قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کو جنہوں نے اپنی زندگی کا وسیلہ اور راستہ بنا لیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، دنیا والوں کو دیکھ کر، ان کے پیسے کو اور محلوں کو دیکھ کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اللہ اتنا دے گا آپ سے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب صفہ تھے، اللہ کے نبی ان کو جمع کرتے اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اے اصحاب صفہ، بتاؤ مجھے تم میں کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اپنے حکام کے بازار جائے، کوئی 2 کوہان کے، 1 کوہان کے، 2 3 اونٹ اپنے لیے خرید لائے۔ کہا اللہ کے نبی ہم میں سے تو ہر کوئی پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور قرآن کی 1 2 3 آیتیں سیکھتا ہے، وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے عکاظ کے بازار سے اپنے لیے قیمتی چیزیں لے آیا۔ اسی طرح قرآن کو لے کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنا، اور وہ دعا عبداللہ ابن مسعود نے جب اللہ کے نبی سے سنی تو کہا اللہ کے نبی میں اس دعا کو یاد کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اس دعا کو سنے وہ اس کو یاد کرے، رمضان کے مہینے میں اس دعا کو خوب مانگے، اس کا خاص تعلق قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت، یہ چیز مجھے تو عطا کر، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی ذهب ہمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے پیشانی تیری مٹھی میں، مجھ پر تیرے احکامات جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ حق ہے، میں تجھ سے تیرے تمام ناموں کے حوالے سے سوال کرتا ہوں جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے۔ مجھے بتائیے بھلا
اس जामे अल्फाज के अंदर अल्लाह का कौन सा नाम छूट गया? जितने नामों से अल्लाह तूने अपने आप को पुकारा, उन सारे नामों से उसके वसीले से मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। उन तमाम नामों के वसीले से मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ जो नाम तूने अपने मखलूक को सिखाए। हमको तो इतना भी नहीं मालूम साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर कि अल्लाह की मखलूक कितनी है, और हर मखलूक अल्लाह का नाम लेती है। हर मखलूक को जो तूने अपना नाम सिखाया है, उन तमाम नामों के वास्ते से मैं तुझसे दुआ करता हूँ, या तूने उन नामों को इल्म गैब में छुपा रखा है कि तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना, मेरे सीने का नूर बना, मेरे गम का मदावा बना, मेरी फिक्र, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर चीज का इलाज है अल्लाह इस कुरान मजीद को बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भरपूर तरीके से अपने जहन को प्लान करने की तौफीक अता फरमाए कि हम रमजान का प्लान करें अच्छे से, और हमारी माओ बहनों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे, और हम सब मिलकर खूब, हर फैमिली मिलकर खूब अल्लाह की इबादत करेंगे, जिक्र करेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगेंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ मांगेंगे, बिलखुसूस हमारे वो भाई जो इस वक्त तकलीफ से गुजर रहे हैं। रमजान के महीने में वो सहर करने को लेकर सवालिया निशान है, इफ्तार को लेकर सवालिया निशान है, अल्लाह के लिए वो रोजा रखना चाहते हैं, हालात नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है, अमन में रखा है, तो हम उनको भूल जाए कि अल्लाह का शुक्र है हम पर ये मुसीबत नहीं आई, ऐसा हम सोचें? नहीं, हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हम सब एक जिस्म वाहिद है उम्मत। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म तकलीफ को महसूस करता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।